Hello, friends. Thank you once again for your great support. We hope you are enjoying the videos and preparing for your exams. If you require video of any particular topic, then you can contact us through the link given in the description. We are trying our best to upload more and more videos here. Very good afternoon, friends. And as we know, in last lecture, chapter 12 is going on, and in last lecture, we completed the classification of organic compounds as well as we have defined that functional group and homologous series के बारे में हमने देखा. हमने जो फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं, and in the last lecture we did this four class of compound. First, alkane, जिसमें suffix used is an. Second, alkene, in for it, suffix in is generally used. फिर alkyne में ine, and even for a halide compounds, a halo is prefix. Okay, chloro, bromo, fluoro, iodo, etc. तो ये चार फंक्शनल ग्रुप हमने अच्छे से कर दिए. आज हम फिफ्थ अल्कोहल से शुरू करेंगे. सो नेक्स्ट क्लास ऑफ कंपाउंड इज अल्कोहल. ओके, रेडी. अब ये अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप विच इज OH, और जिसके लिए जो सफिक्स लगेगा वो है ऑल. अल्कोहल तो जैसे ऑल पीछे आता है. But sometimes whenever the more reactive group will present compared to the OH in compound, then hydroxy suffix, hydroxy prefix भी लगता है. But जब हम वो IUPAC nomenclature के rules करेंगे, I will inform you where you should use hydroxy prefix at the place of all suffix. अभी हम all suffix को use करेंगे. So ready friends, जैसे CH3OH and number of carbon is only 1. So हम सबसे पहले तो मिथेन इस तरह से लिखते हैं. And now last E letter is substituted by all. So it would be methanol. E letter is dropped and इसकी जगह पे हमने all लगा दिया. So methanol is the correct name of given compound. Second, CH3CH2OH, ethanol, ethane and then all. ये इथेनॉल जो है is found in विस्की, ब्रांडी, रम, जो सब मूवीज में हम देखते हैं, राइट. इसलिए मैं बता रहा हूं कि इथेनॉल के कंपेयर में मिथेनॉल भी होता है. तो ये मिथेनॉल जो है, इन न्यूज़पेपर समटाइम्स वी हर्ड कि ये गोमतीपुर में जैसे लट्ठा कांड हुआ एंड 15 लोग मर गए. तो ये लट्ठा कांड, लट्ठो वर्ड प्रॉपरली यूज फॉर दिस मिथेनॉल विच इज अ पॉइजनियस अल्कोहल. अगर वो देसी दारू, देसी वाइन, जब देसी बनाते हैं दारू, तो वो ऐसे ही भर के रखते हैं, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम अगर रख दिया इससे, तो इट विल कन्वर्ट टू मिथेनॉल. एंड अगर इस तरह का मिथेनॉल कोई पी लेता है तो फर्स्ट स्टेज में विजन चला जाता है, आईज में इफेक्ट पड़ती है, एंड सेकेंडली फिर आदमी मर भी सकता है. सो पॉइजनियस अल्कोहल मिथेनॉल एंड इथेनॉल. अब नोमेनक्लेचर को आगे बढ़ाते हैं. जैसे CH3, CH2, CH2OH. So there are 3 carbons
present in the compound, so first we will use a propane. ठीक है, all is the suffix and we have to show the position now. तो जैसे नंबरिंग करेंगे, कार्बन कोई नंबरिंग करना है 1 2 and 3 and in such a way so that OH group remains at the nearest position. So in this case OH first पे है and that's why propane 1 all is the correct name. Once again, suppose CH3, CHOH and CH3. Now it will be propane, तो इसमें भी है, all भी रहेगा, but as OH is present on second carbon now, so the correct name would be propane 2 all. Okay, आप भी ट्राई कर सकते हैं, देखिए जैसे CH3, CH2, CH2, CHOH, CH3. So number of carbons are 5 and so we will write pentane all and now decide the position of OH. नंबरिंग जो कर रहे हैं हम वो इट मे बी फ्रॉम लेफ्ट और राइट, कोई भी साइड से करो, इन सच ए वे कि जो OH है इट शुड रिमेन्स एट द लोएस्ट पोजीशन. तो अगर लेफ्ट साइड से हम देखेंगे तो OH विल कम ऑन फोर्थ पोजीशन बट इट विल रिमेन ऑन सेकंड पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड साइड. सो 2 इज द करेक्ट लोकेंट, पेंटेन 2 ऑल. ठीक है, एक और मैं लिख देता हूं, CH3, CH2, CHOH and CH2 and CH3. Now you can clearly see there are 5 carbons, so we'll use the pentane and OH is on third position. So pentane 3 all. Clear? अब एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में भी दे देता हूं, वो भी आप देख लीजिए. जैसे इस तरह का हमें कोई कंपाउंड दिया गया है एंड यहाँ पे है OH. What will we do? First of all, place carbon everywhere at all the junction, corner and सब जगह पे कार्बन. तो ये हो गए नंबर ऑफ कार्बन 6 हुए. So we have to write hexane. Hexane all तो वैसे ही होगा OH की वजह से and OH will be on second position. देखो, and so hexane 2 all is the right name. So do practice with such a bond line structure also. Now the sixth class of compound, which is aldehyde. Functional group is bond CHO. See, now these all are, ये जो कार्बन वाले जब आएंगे, these all are carbonyl group containing carbonyl group containing functional group or compound. तो इसे हम expand भी कर सकते हैं इस तरह से extend करके C double bond OH, इस तरह से भी explain करते हैं. So many students generally गलती कर देते हैं, जैसे अगर इस तरह के बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिए हैं, डबल बॉन्ड O और फिर H, सो कंसीडर दिस होल एज अ CHO. अब देखो ये पूरा CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड. सो ऑलवेज रिमेंबर एंड डोंट मेक एनी मिस्टेक इन सच कंपाउंड्स. ठीक है, कम बैक. एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स लगेगा वो है आल, AL, आल. But in case of more reactive group, formyl or oxo, prefixes generally they are used. But वो जब आएंगे मैं बताऊंगा. जनरली अभी आपको सफिक्स आल करके नोमेनक्लेचर करना है हमें. ठीक है, तो देखते हैं. जैसे
HCHO. Only one carbon is present. That's why मीथेन, फिर वो लेटर ई को ड्रॉप करके सफिक्स आल इज एडेड, एंड सो मिथेनॉल कुड बी द करेक्ट नेम. अब सपोज CH3CHO है तो ये हो जाएगा इथेनॉल. फॉर एग्जाम्पल 3 कार्बन है, देन नंबर ऑफ कार्बन आर 3, तो ये होगा प्रोपेनॉल. एंड फॉर 4 कार्बन, number of carbons are 4, that is butanol. Of course here you can write butane 1-al, ये भी आप लिख सकते हैं प्रोपेन 1-al, but always remember ये जो ग्रुप है एल्डिहाइड, कार्बोक्सी और कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइड ग्रुप, तो ये सब इस तरह के ग्रुप्स हैं जैसे हम जहां खड़े रहते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, तो ऑलवेज दे आर बीइंग विद द फर्स्ट पोजीशन ओनली. वो बीच में कहीं नहीं आएंगे, फर्स्ट पोजीशन पे ही आएंगे. तो अगर फर्स्ट पोजीशन पे वो आते हैं जनरली, तो नो नीड टू मेंशन इट्स पोजीशन. इसकी वजह से प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल भी अगर लिखा है आपने तो इट इज कंसिडर्ड करेक्ट आयुर्वेदिक नेम फॉर दिस गिवन कंपाउंड. ओके, अब यहाँ पे थोड़े से कॉमन नेम भी हमें सीखने हैं. ऑलवेज रिमेंबर फ्यू वर्ड्स, जैसे फॉर्म फॉर 1 कार्बन, एसी फॉर 2 कार्बन, फॉर 3 कार्बन प्रोपियो, एंड 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन. अब देखो ये मिथेनॉल में जैसे एक कार्बन है and form, so for and aldehyde combinedly it will be formaldehyde. See, formaldehyde is the common name of methanol. ऐसी पर से हम बनाएंगे acetaldehyde, ऐसी पर से ये बनेगा acetaldehyde. ठीक है, फिर यहाँ पे हमें मिलेगा propionaldehyde, okay, and at last butyraldehyde, formaldehyde, acetaldehyde, propionaldehyde, butyraldehyde. These all are the common name respectively. Formaldehyde, when you make aqueous solution of formaldehyde, it will call formalin, and it is used in the preservation of biological specimens. बायोलैब में आपने वो lizard, snakes, rat, ये सब specimens देखे होंगे बॉटल में भर के. They are not kept in water. जो लिक्विड भरा है that is not water, it's a formalin. एंटीसेप्टिक रहता है, इसकी वजह से बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मेलिन इज यूज्ड, obtained from formaldehyde. So I repeat all the 6: alkane, alkene, alkyne. हैलाइड में हेलो प्रीफिक्स, फिर एल्कोहल ऑल सफिक्स, एंड एल्डिहाइड आल सफिक्स, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, etc. Right? Now the next is जो 7th कंपाउंड जो आएगा वो है कीटोन. Again bond CO bond is a functional group, can be explained by C double bond O bond. ये जो CO है, you can clearly see 2 valencies of these carbons are free. So 2 और कार्बन दोनों साइड लगेंगे, so minimum 3 कार्बन से तो कीटोन शुरू होंगे. And the suffix which is used is on.
sometimes oxo prefix is also used in case of more reactive group, वो nomenclature के rules में बताएंगे। स्टार्ट करते हैं जैसे CH3 CO CH3, number of carbons are 3, so first we will write propane, ठीक है, फिर suffix on and show the position, so ये first carbon, फिर ये second and ये third, ये CO बीच में लगेगा second पे, so propane 2 on, right? अब मानो ये है CH3CO CH2CH3, there are 4 carbons, so butane, फिर on, और बीच में जो पोजीशन है वो भी सेकेंड, लेफ्ट साइड से देखो कीटोन सेकेंड पर आ गया, ऑक्सो ग्रुप। मानो कि CH3 CH2 CO CH2 CH3, तो there are 5 carbons, so pentane on and CO group is on third position, so pentane 3 on, CH3 CH2 CH2CO CH3, इसमें भी 5 carbons are there, pentane तो यहाँ पे भी लगेगा, but ketone is on second position, so pentane 2 on, समझ रहे हैं? सपोज इस तरह का कंपाउंड दिया है, ये, नाउ यू शुड अंडरस्टैंड इट, ये कार्बन, फिर ये सेकेंड, फिर यहाँ पे भी एक कार्बन होगा, ये इस तरह से, सो टोटल 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स आर देयर, हेक्सेन, and ketone is on third position, so hexane 3 on। यहाँ पे मैं आपको कॉमन नेम भी बताता हूं, देखो सपोज CH3 CO CH2 CH3, नाउ ये है आपका कीटोन ग्रुप एंड इज सराउंडेड बाय 2 एल्काइल ग्रुप, एक तरफ है इथाइल and on the other hand methyl, so apply alphabetical order, ABCDE will come first before M, so पहले हम लिखेंगे इथाइल, फिर M methyl and last में ketone word is added, so the common name could be ethyl methyl ketone, ये भी होता है, and especially अगर दोनों साइड सेम ग्रुप हैं, जैसे ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल, डोंट राइट मिथाइल मिथाइल कीटोन, बट इन केस ऑफ टू सिमिलर ग्रुप ऑलवेज राइट डाई मिथाइल कीटोन, एंड ऑफ कोर्स दिस इज कॉल्ड एसीटोन कॉमनली। ये एसीटोन आपको पता नहीं है शायद, लड़कियां जब नेल पेंट करती है तो मान लो आज रेड कलर का नेल पेंट किया एंड दूसरे दिन ग्रीन करना है, तो वो रेड कलर को निकालेंगे कैसे? अगर नाइफ या कोई शार्प टूल से करेंगे पूरा नेल निकल जाएगा भाई। दे जनरली यूज अ लिक्विड कॉल्ड नेल पॉलिश रिमूवर, एंड द नेल पॉलिश रिमूवर इटसेल्फ एसीटोन, ये यही है एसीटोन, एंड यू वॉन्ट बिलीव इट्स अ कंफर्मेटिव टेस्ट इन 12th साइंस इन प्रैक्टिकल एग्जाम, यू विल बी गिवन सच ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जाम में। अगर आपको ऐसा लगता है कि एसीटोन है, डिप योर फिंगर इन द सॉल्यूशन इन द सॉल्वेंट एंड जस्ट रब इट विथ योर नेल पेंट, अगर वो नेल पेंट निकल गई, कंफर्म दैट गिवन कंपाउंड इज एसीटोन। बट इसके लिए हर एक लड़के को कोई एक पर्टिकुलर नेल पर पेंट करके जाना पड़ेगा, ठीक है? एनीवे, तो ये था 7 कीटोन। 8, now we will have carboxylic acid, ठीक है? Carboxylic acid which is bond COOH and can also represented by C double bond OOH। टिपिकल मिस्टेक कर देते बच्चे, देखो ये
बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में अगर मैंने ये लिख दिया तो लोग क्या समझेंगे, जिस जो नहीं जानते, अरे भाई ये तो कीटोन है, अरे भाई ये तो अल्कोहल है. नो, दे आर नॉट सेपरेट टू डिफरेंट ग्रुप, इट इज कलेक्टिवली COOH. ये पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड का वो ग्रुप है. सो ध्यान रखना चाहिए आपको, ठीक है. बी केयरफुल. नाउ जो सफिक्स लगेगा वो है ओइक एसिड. एंड मैंने बताया इन स्पेसिफिक कंडीशन, in the presence of certain more reactive group, carboxy prefix generally is added. Right? देखते हैं examples. So HCOOH, देखो methane oic acid, so it is a methanoic acid. Common name, याद कीजिए form word, so you will write formic acid. Okay, formic acid is found in red and लाल चीटिया. ग्रीक लैंग्वेज में फॉर्माइका बोलते इसे, इस पर से ये नेम दिया गया है फॉर्मिक एसिड. एंड वेन एवर इट बाइट्स अस, जब वो चीटी हमें काटती है, इट स्प्रेस फॉर्मिक एसिड इन अवर बॉडी एंड इट क्रिएट्स इरिटेशन. एकदम से जलन होती है, खुजली आ जाती है. वो इसकी वजह से, ये किसकी वजह से है? फॉर्मिक एसिड की वजह से. ठीक है. So HCOOH, methanoic acid or formic acid. Same way, CH3COOH, 2 carbons, then ethanoic acid, and commonly acetic acid. Yes, you heard this word, acetic acid. Vinegar, Chinese खाने जाते हैं तो वो साथ में देते हैं. As well as it is a good food preservative, right? पिकल्स, टोमेटो सॉस, केचप जो हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं, पूरा साल हम खाते हैं जब तक खत्म नहीं होता. तो हाउ कैन इट प्रिजर्व? बिकॉज ऑफ द एसिटिक एसिड लाइक प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं. सेम वे अगर 3 कार्बन है, CH3, CH2COOH, देन प्रोपेनोइक एसिड or propionic acid, common name. And same way, CH3, CH2, CH2COOH is butanoic acid. They are always be present on first position, so no need to mention its position. फिर भी अगर किसने लिख दिया butane 1-oic acid, 101% it will correct. Okay, so हमने अब तक 8 कंपाउंड्स कर दिए. एक बार मैं रिमाइंड करवा देता हूं. देखो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, फिर हैलाइड में हेलो प्रीफिक्स, एल्कोहल में ऑल सफिक्स, एल्डिहाइड में आल सफिक्स, कीटोन ऑन सफिक्स, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड इज सफिक्स. नंबर 9. अब ये है एमाइड. सी एमाइड, नॉट एमाइन. एमाइन्स आर डिफरेंट, दोनों हैं. ओके, सो यहाँ पे अभी एमाइड हम लिखते हैं. बॉन्ड CONH2 can also be explained by the structure CONH2 expanded form, and the suffix used is same word, amide. And carbamoyl is its prefix, जो कि जब आएगा तो हम बताएंगे. ये भी सिंपल सा है. HCONH2 as only one carbon is there, called methanamide. Methanamide, and common name बन जाएगा formamide. सपोज 2 कार्बन हैं तो
इथेनेमाइड, और कॉमन नेम में हम लिखेंगे एसिटेमाइड। सेम वे 3 कार्बन अगर कंपाउंड में रहे देन propanamide. You can also write propan 1 amide, or same way if number of carbons are 4, then we should write butane 1 amide or butanamide. समझ रहे हैं? Good. अब नंबर 10, तो 10 नंबर पे अब आ जाएगा नाइट्रो कंपाउंड. Class of compound is nitro. Yes. एंड जो ग्रुप है वो बॉन्ड NO2. वेरी इजी. इसमें सिर्फ प्रीफिक्स लगेगा एंड सेम वर्ड नाइट्रो. नाइट्रो इज द प्रीफिक्स फॉर दिस NO2 ग्रुप. कोई सफिक्स नहीं है. तो जैसे CH3NO2, जिसे हम बोलेंगे नाइट्रो मीथेन. एक या दो कार्बन मीथेन और इथेन के केस में जनरली लोकेशन लोकेंट नहीं आता है. सो जैसे CH3 CH2NO2, तो ये होगा नाइट्रोइथेन. बट इफ CH3 CHNO2 CH3, now we have to mention its position. प्रोपेन तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोपेन, फिर नाइट्रो प्रीफिक्स is added nitro, and as NO2 group is on second position, so 2 फिर डैश हाइफन से सेपरेट करना है लोकेशन पोजीशन नंबर को, ये लोकेंट को. सो 2 डैश 2 हाइफन नाइट्रो प्रोपेन. एक और मैं बता देता हूं. CH3 CH2 CH2 CHNO2 CH3. इसके लिए हम लिखेंगे 2 नाइट्रो पेंटेन. चेक इट. करेक्ट है ये? वेरी गुड. सो 10 हुए. एक और करते हैं 11, which is nitrile compound. And nitrile compounds are also known as a cyanide. Cyanide compounds. The functional group present is CN, extended form C triple bond N भी होता है. And जिसमें always nitrile is suffix. Sometimes साइनो प्रीफिक्स भी लगता है. वो जब रूल्स आएंगे तब समझ में आएगा. एंड कैन टेक फॉर एग्जांपल जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, नंबर ऑफ कार्बन्स आर 2, सो ये हो जाएगा इथेन नाइट्राइल. सेम वे CH3 CH2 C triple bond N is called propane nitrile or nitrile, or same way CH3 CH2 CH2CN is known as butane nitrile. So alkane, alkene, alkyne, halide, alcohol, aldehyde, ketone, carboxylic acid, amide and nitro, and last में nitrile और cyanide. अभी भी important दो ईथर एस्टर, ये दो तो बाकी. अभी एसिड हैलाइड ये सब अभी, और अमाइंस बाकी हैं. वो सब नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे. बट इतने जो
कंपाउंड्स है, क्लास ऑफ कंपाउंड या फिर फंक्शनल ग्रुप, यू शुड लर्न इट प्रॉपर।